My dear students, welcome to another wonderful session on methodological, another session on divisibility rules. In this session, we'll be taking up the concept of seed numbers and how to use the seed numbers to find a divisibility by many prime numbers like 17, 13, 19, 29 and so on. So you'll be enjoying this concept and then we'll be practicing a few questions. Let us start. So first of all, what is a seed number? And how can we apply seed number or basically oscillator concept to find divisibility? First thing to remember that it is applicable for odd numbers which are not divisible by 5. Okay. So there are two steps. First, we need to find out seed number for a given number, and then we have to apply that seed number to find out whether the given number, whatever is given. For example, let us say the question is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whether it is divisible by 19 or not. Okay. So there were two steps. First step will be finding seed of 19, seed number of 19. And then second step will be application, applying. So firstly we will learn how to find a seed number for a given number. Okay. Purpose हमारा क्या रहेगा seed number निकालने में, that whatever number is there, let us say 19 से ही start करते हैं. 19 is there. So 19 can be written as 20 minus 1. ठीक है. जो भी हम प्राइम नंबर लेंगे, for that prime number we have to focus on finding unit digit either as 1 or unit digit as 9. Our focus will be on finding unit digit either as 1 or as 9, any multiple of that number. So 19 के केस में 19 into 9 is 171. So in that we are getting unit digit as 1 and 19 into 1 is 19. Okay. So in both cases we can find out the seed numbers. Every prime number or every number in general which is an odd number, not a multiple of 5, will give us two seed numbers. ठीक है. और we will be using that seed number which will be smaller in magnitude because वहां से कैलकुलेशन हमारे लिए आसान पड़ेगा. तो इन फर्स्ट केस ध्यान से समझना, फर्स्ट केस में दिस नंबर 171 कैन बी रिटन एज 17 into 10 plus 1, 17 into 10 plus 1. So since we are adding plus 1 here, so we'll change the sign, make it minus, and this is 17 into 10, so we'll take 17 here. So minus 17 will be our seed number for 19. Okay. Second case में फिर से एक बार समझते हैं. So this is 19 which is 20 minus 1, यानी 2 into 10 minus 1. Since minus sign है यहाँ पे, so we'll change the sign, make it plus, and 2 है यहाँ पे, so plus 2 will be our seed for 19. So minus 17 is also a seed for 19, plus 2 is also a seed for 19. Okay. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let us say our example is 31. अगेन हमारा फोकस है 31 का एक मल्टीपल लेंगे हम जिसमें कि यूनिट डिजिट में वी विल बी गेटिंग ईदर 1 और 9. तो एनी मल्टीपल ऑफ 31 विच हैज यूनिट डिजिट 1 और 9. तो 31 into 1 is 31 and 31 into 9 that is 279. In the first case 31 is 3 into 10 plus 1. So seed number will be, since plus sign is there, it will be negative or minus of 3. That will be our seed. And in the second case, this is 279, which is 280 minus 1, 28 into 10 minus 1. So since minus sign is there, seed में positive sign रहेगा, and that will be plus of 28. So these are our seed values for numbers. ऐसे ही निकाल लोगे बाकी नंबर्स के लिए भी. Is that clear? अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं.
तो our question was whether 19 is divisible by 1 2 3 4, whether 1 2 3 4 5 6 7 is divisible by 19 or not. 1 2 3 4 5 6 7 is divisible by 19 or not. So we've already identified seed number for 19. अब कैलकुलेट करते हैं कि whether this will be divisible by 19 or not. तो 19 का seed आ रहा है -17 and +2. Since +2 is smaller, so we'll be using +2 in this case. Okay. So our numbers to start with is 1 2 3 4 5 6 7 and seed of 19 is +2. This is +2. Now what we'll do, we'll be separating the unit digit and we will be multiplying the unit digit by seed number, by the seed number of 19. तो 7 हमारा यूनिट डिजिट है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 से एंड देन विल बी एडिंग ऑन द रिमेनिंग नंबर. तो 7 इंटू +2, ठीक है, इस 7 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू +2 विल बी एडिंग हियर, तो +14 हो गया. ठीक है, 7 इंटू +2. सो रिजल्टेंट नंबर कम्स आउट बी 1 2 3 4 7 0. नाउ विल रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन. सेपरेट द यूनिट डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाई +2. बट ये तो 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई भी करोगे +2 से तो क्या आएगा, द रिजल्ट विल बी 0 ओनली, तो +0. तो 1 2 3 4 7 इज द नंबर. रिपीट द प्रोसेस अगेन. सेपरेट द यूनिट डिजिट, मल्टीप्लाई बाई +2, तो +14 हो गया. 1 2 3 4 +14, दैट इज 1 2 4 8. अगेन सेपरेट द यूनिट डिजिट, 1 2 4 +16, दिस बिकम्स 140. सेपरेट द यूनिट डिजिट, अब 0 को ऐड करोगे दोस्तों कहानी में 0 ही आएगा, तो 14 + 0 इज 14. फाइनली यू कैन चेक वेदर 14 इज डिविजिबल बाई 19 और नॉट. जब हमारा 2 डिजिट या 3 डिजिट में हो गया तो चेक कर सकते हैं. तो 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 19. So our number 1 2 3 4 5 6 7 will also not be divisible by 19. Since 14 is not divisible by 19, similarly 1 2 3 4 5 6 7 will also not be divisible by 19. Is that clear? Okay. Let us take one more example. This time the number is 2 3 5 6 2 1 and we have to check divisibility by 31. Divisibility by 31. First step is to find seed number of 31. 31 is 30 plus 1. 30 plus 1. So seed number of 31 will be, since here it is +1, the sign will be minus, and this is 3 into 10, so -3. 3 into 10, so this will be -3. -3 is the seed number. So 2 3 5 6 2 1. एंड से सीड नंबर -3 है तो विल बी सेपरेटिंग यूनिट डिजिट और मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो इस टाइम 1 into -3, रिजल्ट विल बी सब्ट्रैक्शन बाय -3. ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा बिकॉज नेगेटिव साइन है. सो 2 3 5 5 9 रिजल्ट आ गया हमारा. अगेन सेपरेट द यूनिट डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय -3, तो -27 हो जाएगा. तो 2 3 5 5 -27, दैट इज 2 3 2 8. सेपरेट द यूनिट डिजिट, 8 into -3 -24. So 2 3 2 -24, that is 208. फिर से एक बार सेपरेट करो. ठीक है, तो -24, 20 -24 is -4 और -4 is not divisible by 90, not divisible by 31. So our answer is of course not divisible by 31 and will not be divisible by 31. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, ठीक है. अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं on the same concept. एक और ले लेते हैं. Let us say n is equal to 2 2 6 3 4 5. Okay, and we have to check divisibility by 7. Whether a number will be divisible by 7 or not. So first we have to find out the seed number of 7. So 7 into 7 is 49, which is 50 minus 1, or we can say 7 into 3 is 21. So that is 20 plus 1. Easy कौन सा पड़ेगा? 21 वाला केस इजी पड़ेगा. तो अवर सीड नंबर, बाकी होंगे तो सीड नंबर दो नहीं. फर्स्ट केस में सीड नंबर क्या आ जाएगा? माइनस है तो दिस विल बी +5. सेकेंड केस में प्लस है तो दिस विल बी -2. विल बी यूजिंग -2 इन दिस केस.
ओके, -2 को यूज करेंगे. सो सेपरेट द यूनिट डिजिट, subtract 5 into -2, that is -10. So 2 2 6 2 4. Again separate the unit digit, subtract -8, 4 into -2. So 2 2 5 4. Subtract unit digit, -8, so 217. और अब तो दिख रहा है दिस इज 217 विच इज द मल्टीपल ऑफ 7. अदरवाइज फिर से वही सेम कहानी करोगे, -14 कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा 7. तो यस, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7. बाकी एग्जैक्टली 7 तो छोटा नंबर है, तो कन्वेंशनली भी डिवाइड करके चेक कर ही सकते हो, बट एक बार 7 पे भी एग्जांपल्स में सीख लिया. ओके, क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? क्वेश्चंस करते हैं अब स्ट्रेट अवे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, whether 2926 3465 is divisible by 29 or not. Pause the video, attempt it yourself. ठीक है, अपने एंड पे ट्राई करो. अब तो समझ ही गए हो कि कैसे निकालना है सीट नंबर. सो 29 का सीट नंबर क्या होगा? 29 is 30 minus 1, 3 into 10 minus 1. So seed number will be plus of 3, plus 3. Now separate the last digit. 5 into plus 3 is 15, plus 15. So number will be 2926. एक सेकेंड, नंबर को थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं हमेशा. देखो फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर गिवन, भाई 29 के बाद कितने भी जीरो लगा दो, दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 29. Isn't it so? Always be divisible by 29. तो स्टार्ट में हमारा 29 ऑलरेडी आ रहा है, तो दिस पार्ट विल ऑलवेज बी डिविजिबल. तो जो पार्ट डिविजिबल है उसको तो पहले ही रिमूव कर दो, नंबर छोटा हो जाएगा हमारा. ठीक है, छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. और एंड में कभी आ रहा हो ऐसा नंबर, फॉर एग्जांपल एंड में 58 लिखा होता है, 87 लिखा होता है, तो उसको भी एंड में रिमूव कर देते, बचे हुए नंबर को चेक करते. ओके, so the number becomes 26361. Now again separate the unit digit, or 1 into plus 3, that will be plus 3. So 2639. Separate 9, 9 into plus 3, 27. So plus 27, and that is 290. And 290 is divisible by 29. So yes, the number is also divisible by 29. Clear? Okay. Next example. 28596425 is divisible by 19 or not. Whether this is divisible by 19 or not. ठीक है, कमेंट में मेंशन करना, इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5624 548321 is divisible by 7 or not. अगेन 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं. स्टार्ट में आ रहा है 56, रिमूव कर सकते हो, 56 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, इसको तो पहले ही हटा दो. लास्ट में आ रहा है 21, दिस पार्ट इज ऑलरेडी डिविजिबल, तो इसको भी हटा दो. और 7 का सीट नंबर क्या आ रहा है? +2. वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड. नहीं, +2 नहीं, -2 आया था. -2 आया था, 21 था ना, -2 आया था, 21. तो 20 + 1, तो हेंस -2 इज द सीट नंबर. नाउ रिमेनिंग नंबर इज 245483. सेपरेट द 3 into -2, -6. सो 24542. अगेन 42 आ गया, 42 आ गया, और 42 तो हमारा डिविजिबल है 7 से, तो इसको भी सेपरेट कर दो. जैसे ही नंबर दिखे अपनी कैलकुलेशन को हमेशा आसान कर दो. 42 को भी हटा दो, ये तो डिविजिबल है, तो बचा हुआ नंबर 245 रह गया. 245 में सेपरेट द 5, मल्टीप्लाई बाय -2, तो -10. 24 - 10 इज 14. तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. 34435863 is divisible by 17 or not. So what is seed number of 17? 17 into 3 is 51, which is 5 into 10 plus 1. So seed number will be plus का साइन है, minus of 5, -5 will be seed number. And 34 जो स्टार्ट में आ रहा है, this is already a multiple of 17, तो इसको तो पहले ही रिमूव कर दो, इसको टेस्ट करने की जरूरत थोड़ी है, तो ऑलरेडी डिविजिबल है 17 से. रिमेनिंग इज 435863. सेपरेट द यूनिट डिजिट, मल्टीप्लाई बाय -5, तो -15 हो जाएगा. नाउ दिस विल बी 43571. 1 into -5, so 4352. 2 into -5, -10, 425.
and 5 into minus 5 is minus 25. So 42 minus 25 is 70. 17, which is definitely 17, is divisible by 17. So yes, the answer is yes in this case as well. Okay, clear है? नेक्स्ट केस 7784932 इज डिविजिबल बाय 59 और नॉट. अब 59 का तो टेबल आता नहीं है, सीड नंबर काम आ जाएगा यहां पे. व्हाट इज सीड नंबर ऑफ 59? 59 इज 60 minus 1. 60 minus 1. सो माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस 6. सीड ऑफ 59 विल बी प्लस 6. ओके, so 2 into plus 6 plus 12. 7784 plus तो 85 हो जाएगा, 8505. Separate the 5 plus 5 into plus 6 is plus 30. 77880. 0 को सेपरेट करोगे अगेन 0 ही ऐड होगा, तो 7788. Then separate the 8, or 8 into plus 6 plus 48. So 826. 6 into 6 plus 36. So this is 118, which is 59 into 2. So yes, the given number is a multiple of 59. Okay, clear? So these are all the questions of seed numbers. अब जो कन्वेंशनल हमारा लास्ट सेशन में एक लास्ट में तुमको क्वेश्चन करने को दिया था, तो उसको सॉल्व करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. अगर तुमने अब तक अटेम्प्ट नहीं किया था तो एक बार पॉज करके अपने एंड पे अटेम्प्ट करोगे. सो इफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 252 डिजिट्स एंड दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 36, तो रिमाइंडर क्या होगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ n इज अ नंबर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर आर टोटल 252 डिजिट्स इन n एंड दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 36, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा? सो वी नो कि स्टार्ट में पहले आएंगे हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई हमारी 9 डिजिट्स तो यहीं खत्म हो गई. ओके, देन आना शुरू होंगे 10 11 12 13 14 15 टिल 99, और दीज आर टोटल 90 नंबर्स. 10 से 99 तक टोटल 92 डिजिट नंबर्स है, 92 डिजिट नंबर्स है, एंड ईच नंबर हैज 2 डिजिट नंबर्स है, 2 डिजिट हो गई. 90 into 2 180 डिजिट्स इन टोटल. तो कितनी एग्जॉस्ट हो गई हमारी डिजिट्स? 9 plus 180. टोटल 189 डिजिट्स आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, और टोटल डिजिट्स इन द नंबर इज 252. तो रिमेनिंग कितना बचा? 252 minus 189, which is 11 plus 52, 63 digits are still remaining. और अब स्टार्ट होंगे 3 डिजिट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 100 101 102 एंड सो ऑन. 63 is already a multiple of 3, तो नंबर्स कितने होंगे? 63 by 3 21 नंबर्स होंगे, और 21 नंबर्स में हमारी 63 डिजिट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी. 21 नंबर्स ऐड करो 99 में, 99 plus 21 is 120, यानी कि 21 नंबर्स हमारे 101 से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे 100 से स्टार्ट होंगे और एंड होंगे 120 पे. 120 पे एंड होंगे, तो लास्ट नंबर विल बी 120, 119 एंड 120. दैट विल बी द लास्ट नंबर. इज दैट क्लियर? पूरा जो हमारा नंबर होगा n, so that will be equal to 1 2 3 4 5 and so on till 119 120, and we have to check divisibility by 36. So first we'll break 36 into co-prime factors, which are 4 and 9. 4 and 9, and for checking divisibility by 4 we have to check only last 2 digits of the number, and last 2 digits are 20. 20. So 20 is divisible by 4, and if this is divisible by 4, n is also divisible by 4. 4 से divisible हो गया. अब 9 से टेस्ट करना है. 9 के लिए विल बी चेकिंग सम ऑफ डिजिट्स, डिजिटल सम, और डिजिट्स हमारी क्या है? 1 से लेके 120 तक है, तो सम ऑफ डिजिट्स विल बी 1 plus 2 plus 3 plus 4 till 120. अब देखो यहाँ पे एक डाउट आएगा, और वो डाउट जेन्युइन डाउट है
कि 120 तक हम ऐड करें, बट एक्चुअल में क्या ये सम ऑफ डिजिट्स है? ये एक्चुअल में सम ऑफ डिजिट्स नहीं, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 119 प्लस 120 कर रहे हैं तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 9 + 1 + 2 + 0, सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा हमारा 11 + 3 14। दिस इज सम ऑफ डिजिट्स, बट हम यहाँ पे 119 ऐड कर रहे हैं, 120 ऐड कर रहे हैं, बट इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम अल्टीमेटली क्या करते हैं 9 से टेस्ट करने के लिए व्हाट वी डू, वी चेक सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर 120 हमारा डिविजिबल बाई 9 है, नहीं है, बट इफ 120 इज डिविजिबल बाई 9 देन 120 का डिजिटल सम भी डिविजिबल बाई 9 होगा, ठीक है। सो इफ 120 इज डिविजिबल बाई 9 तो 129 का मल्टीपल होगा, 129 का मल्टीपल होगा, और अगर 129 का मल्टीपल है तो 120 का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी 9 का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल 117 का एग्जांपल है, तो 117 दिस इज 9 × 13, ठीक है। सो 9 का मल्टीपल आएगा हमारा आंसर में, और अगर तुम सम ऑफ डिजिट्स कर दोगे 1 + 1 + 7 तो 9 आ जाएगा। तो अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा 9 के मल्टीपल मिल भी रहे हैं तो उससे हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी हमें 9 से चेक करना है, तो हम फाइनली 9 से डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर हमें लेट अस से अल्टीमेटली 9000 एक्स्ट्रा भी मिल गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, 9 से डिविजिबिलिटी के बाद तो 0 ही आ जाएगा, रिमाइंडर थोड़ी आएगा उस पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, कि हम 119 ऐड करें या 1 + 1 + 9 ऐड करें, बिकॉज 1 + 1 + 9 मैनुअली ऐड करना इज नॉट पॉसिबल फॉर 252 डिजिट्स, दैट इज वाई विल बी डूइंग दिस अप्रोच, क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान है। फ्रॉम 1 to 120 वी कैन सम इजिली, जो काम आसान है उसको करेंगे, जब आसान और मुश्किल दोनों काम के बीच में कोई फर्क नहीं है, दोनों हमें आंसर सेम ही देंगे। ओके, क्लियर है? तो ये बात, ये डाउट तुम्हारा सबसाइड हो जाना चाहिए कि क्यों हम 119 में 1 + 1 + 9 नहीं ऐड कर रहे, 119 ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हमें आंसर चाहिए और आंसर जल्दी मिलेगा ऐसे ही, अदरवाइज तो हम निकाल ही नहीं सकते फिर। ओके, तो 1 से लेके 120 तक सिग्मा एन क्या फॉर्मूला आएगा, n × 10 + 1/2, दैट विल बी 120 × 121/2, दिस विल बी 60 × 121, 60 × 120 7200 + 60, तो 7260, दिस इज अवर सम ऑफ डिजिट्स। अब इसका भी सम ऑफ डिजिट्स ले लो, क्योंकि 9 से टेस्ट करना है हमको, सम ऑफ डिजिट्स इसका क्या आएगा, डिजिटल सम फॉर दिस विल बी 7 + 2 + 6 + 0, तो 7 + 2 इज 9 + 6 15, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है तो नॉट डिविजिबल बाय 9 आ रहा है, बट डिजिटल सम है तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना नहीं पता चलता, ये भी पता चलता है साथ में एडिशनली कि 15 आ रहा है तो डेफिनेटली 9 + 6 है, दिस इज 9 + 6, तो 9 वाला पार्ट तो 9 से डिविजिबल है, 6 वाला पार्ट विल बी रिमाइंडर, सो रिमाइंडर विल बी 6 इफ वी आर डिवाइडिंग बाय 9। दो इंफॉर्मेशन में मिल गया कि इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 4 रिमाइंडर इज 0, इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 9 रिमाइंडर इज 3 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आया था, 6 आ रहा है, बट हम तो एक्चुअल में डिवाइड करें 36 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या हो जाता है कभी कभी 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट शुड बी द रिमाइंडर, दैट विल द रिमाइंडर जो कि दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर दे और 9 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर दे, व्हाट विल बी दैट नंबर, 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर है तो दैट स्मॉलेस्ट सच नंबर इज 0, नेक्स्ट नंबर विल बी 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24 एंड सो ऑन, और 9 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर दे, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 6, देन 6 + 9 15, देन 15 + 9 24, so 24 is common in both the cases, so answer will be, remainder will be 24 only when we are dividing by 36, remainder will be equal to 24, this will be our answer, is this clear? okay, क्या ये समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a 6-digit number is formed by repeating a 2-digit number 3 times, which is for example 242424, then that number will be divisible by which of the following numbers? Which of the following numbers that number will be divisible by? 3, 7, 11, 13 or 37. ठीक है, so if the number is let us say 6-digit number है तो और 2 डिजिट्स को बार बार रिपीट करें, यानी कि नंबर इज इन द फॉर्मेट ए बी ए बी ए बी, isn't it so? तो या तो इसको एक्सपेंड कर दो, तो दिस इज विल बी a × 10⁵ प्लस b × 10⁴ प्लस a × 10⁵ प्लस b × 10² प्लस a × 10⁻1 प्लस b × 10⁻0 यानी b × 1, ओके, तो a × 10⁵ प्लस b × 10⁻4
So can we write this as 10a plus b into 10 to power 4. भाई 10 to power 4 को कॉमन ले लोगे 10a plus b बच जाएगा. सिमिलरली 10 to power 2 को कॉमन लोगे 10a plus b बच जाएगा. और लास्ट में तो है ही 10a plus b. And 10a plus b is nothing but ab only as a number. 10a plus b is ab only, isn't it so? और ab प्रोडक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना. नंबर को लिखने का तरीका है, हमारा मेथड है. सो 10 to the power 4 plus 10 square plus 1 into 10a plus b, which is ab. और 10 to the power 4 is 1 followed by 4 zeros, तो 10101, this will be into ab. This is our number. ठीक है. और ये इतना लिखने की बजाय स्ट्रेट अवे भी लिख सकते थे, बिकॉज हमें दिख रहा है स्ट्रेट अवे ab. सो स्ट्रेट अवे भी लिख सकते थे कि दिस नंबर इज ab followed by 4 zeros, then ab followed by 2 zeros and लास्ट में ab. इन सबको ही तो ऐड कर रहे हैं, तभी तो रिजल्ट आ रहा है. ठीक है. सो दिस नंबर विल बी, ab को कॉमन ले लिया तो इनटू 1 फॉलोड बाई 4 zeros प्लस 100 प्लस 1. So this number will be 10101 into AB. Okay, clear है. अब 10101 we know this is not a prime number. 10101 is not a prime number. ठीक है. This number is divisible by 37 as well as 3 as well as 7 and 11. Sorry, 11 से नहीं होता है, 7 and 13, 37, 3, 7 and 13. So this is 111 into 91, which is 13 into 7 into 37 into 3. So our number will definitely be divisible by 3, 7, 13 and 37. Option D will be the answer. 11 से divisible हो सकता है, बट हमेशा होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज इफ AB is equal to 11 तो 11 से भी divisible हो जाएगा. इफ AB is equal to 11 तब फिर 11 से भी divisible हो जाएगा इन दैट केस, स्पेशल केस में, अदरवाइज नॉट. इज दैट क्लियर? ठीक है. So our answer will be option D. Next question. भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, it always means will be always divisible by. Okay. Next question. If n is the largest positive integer that divides all numbers of the form 3 to the power k plus 4 into 3 to the power k plus 1 plus 3 to the power k plus 2, where k is a positive integer, then n is, आगे तो मेंशन ही नहीं किया, n is always divisible by is the question. n is always divisible by which number? Okay, always divisible by which number? So what we can do, we can take 3 to the power k as common. 3 to the power k plus 4 into 3 to the power k plus 1 implies 3 to the power k into 3 to the power 1, because powers add up होती हैं, plus 3 to the power k into 3 to the power 2. So 3 to the power k को कॉमन ले लोगे, बच जाएगा 1 plus 4 into 3 is 12 plus 9. So this becomes 3 to the power k into 12 plus 1, 13 into plus 9, 22. This is our number. 3 to the power k into 22. Question पूछा है, n is the largest positive integer that divides all numbers. ओके ओके ओके, ऑलरेडी की मेंशन था, तो n की वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगा. कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर n है, दैट इज डिवाइडिंग ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म. तो व्हाट विल बी सच नंबर जो कि ऐसे सारे के सारे नंबर्स को डिवाइड करे. k की वैल्यू कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता, बट k इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ऑल्सो गिवन. सो इफ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, k का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? k मिनिमम विल बी इक्वल टू 1. देन इट कुड बी 2, 3, 4, एनी नंबर एंड सो ऑन, इजंट इट सो? तो फॉर k मिनिमम, k इज इक्वल टू 1 के लिए दिस नंबर विल बी 3 into 22, which is 66. For k is equal to 2, this will be 3 square into 22, which will be 3 into 66. Or in general, this number will be 3 into 22 into 3 to the power k minus 1. But since k is a positive integer, तो k का मिनिमम वैल्यू 1 है और k minus 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. और 0 पे भी हमें 3 to the power 0 यानी कि 1 मिलेगा. सो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 66. इस क्वेश्चन में गलती होने का स्कोप ये है कि मार्क कर दोगे 22,
और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज 66 से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। 22 से डिविजिबल तो है ही है, बट 66 से हमेशा डिविजिबल है, बिकॉज n इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। 22 इज ट्रू, बट 22 इज नॉट इक्वल टू n, n will not be equal to 22 because n is the maximum such number, largest such number. So n will be equal to 22 into 3, and all the numbers of this form will always be divisible by 66. Okay, clear है? Next question. If 3, 4, 5, 6, a, b, 8 is divisible by 6, then find all the possible solutions for the order pair a, b. And this is divisible by 6, and 6 से divisible होने के लिए टेस्ट क्या होता है? Multiply by 2 and 3. 6 is made up of, composed of 2 co-prime factors 2 and 3. अब क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट पे आ रहा है 8, यूनिट डिजिट ऑलरेडी इवन है, तो 2 से divisible तो है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 से टेस्ट करना बाकी रह गया। और फॉर 3 का टेस्ट क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 3 + 4, 3, 4, 5, 6, तो 3 + 4, वैसे भी हमें 3 से टेस्ट करना है, तो 3 के जो मल्टीपल है उनको तो हटा ही दो। 3 को हटा दिया, 5 को 5 बोल रहे हैं, 6 को हटा दिया, और 4 + 5 भी 9 है, तो उसको भी रिमूव कर दो, बच जाएगा a + b + 8। चाहो तो सबको ऐड कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं, जो भी 3 के मल्टीपल उनको सेपरेट कर दो, क्योंकि उनको बाद में डिवाइड क्यों करना, पहले ही ऐड ही मत करो, क्योंकि ऐड करने में कई बार गलती होगी तुमसे। जब लंबा नंबर होगा तो कई बार तुम गलती करोगे, इसलिए गलतियों का स्कोप हमें खत्म करना है, उन चीजों को ऐड ही नहीं करना है, उन स्टेप्स को करना ही नहीं है जिनसे गलती होने का स्कोप बढ़ता है। ओके, a + b + 8 हो गया। अब डिवाइड करोगे इसको 3 से, तो 8 is 6 + 2, यानी कि अल्टीमेटली इफ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? a + b + 2, बिकॉज 6 तो डिविजिबल है, और अगर a + b + 2 को डिवाइड होना है 3 से, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a + b? क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? a + b मे बी इक्वल टू 1, दिस कैन बी इक्वल टू 1, और 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर दिस कुड बी इक्वल टू 4, और दिस कुड बी इक्वल टू 7 और 10 और 13 और 16, बट सिंस a + b इज द सम ऑफ डिजिट्स, तो दिस विल बी बिटवीन 0 and 18, क्योंकि मैक्सिमम भी होगा तो 9 होगा, 9 + 9 मैक्सिमम 18 हो सकता है, मिनिमम होगा 0 होगा। सो 1, 4, 7, 10, 13, 16 आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a + b का सम। 19 हो नहीं सकता। अब अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें निकालने हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस। सो इफ a + b इज इक्वल टू 1, तो a b के लिए क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं? इधर a विल बी इक्वल टू 1, b विल बी इक्वल टू 0, और a विल बी इक्वल टू 0, b विल बी इक्वल टू 1, तो देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस। इफ a + b इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे? a कैन बी 0, b कैन बी 4, a can be 1, b can be 3, a can be 2, b can be 2, a can be 3, then b can be 1, and a can be 4, b can be 0. Basically 4 + 1, 5 solutions आएंगे। Okay, for 7 start होगा 0,7 से और end होगा 7,0 पे, तो 0 से 7 तक टोटल, 1 से 7 तक 7 हो गए, 7 + 1 8 सॉल्यूशंस होंगे, 8 सॉल्यूशंस होंगे। सिमिलरली फॉर 10 के लिए कहां से स्टार्ट होगा? अब फर्क पड़ेगा, अभी तक 1, 4, 7 में 0 से स्टार्ट हुआ था, बट अब 10 के लिए 0 से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर तुमने एक नंबर को 0 ले लिया तो दूसरे नंबर को 10 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिजिट है, सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट मैक्सिमम कैन बी 9, तो 1 + 9 से स्टार्ट होगा, और एंड भी 1,9 से स्टार्ट होगा, एंड होगा 9,1 पे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस केस विल बी टोटल 9 सॉल्यूशंस। 13 के केस में स्टार्ट होगा 4 से, बिकॉज 1, 2, 3 लोगे तो वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, 4,9 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 9,4 से, 9,4 पे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 6 सॉल्यूशंस आर देयर, एंड फॉर 16 देयर विल बी ओनली सॉल्यूशंस, जबकि हमारा एक नंबर 7 हो, दूसरा 9 हो, और बोथ आर 8 और 9 and 7, तो 3 सॉल्यूशंस। ऑर्डर्ड केस था ना, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऐसा केस तो, ऐसा क्वेश्चन तो ऑर्डर ही होगा। सम ऑफ कितना सॉल्यूशंस आ गए हमारे? 2 + 5 7, 7 + 8 15, + 9 24, + 9 33 सॉल्यूशंस। एक सेकेंड, पहले केस में आए 2 सॉल्यूशंस, ओके, दूसरे में आए 5, फिर आए 8, फिर आए 9, फिर 6 and 3, 33 सॉल्यूशंस हो गए। ओके, इज दिस क्लियर? तो दैट्स ऑल इन द सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा, सीड नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन वी डूइंग अनदर कॉन्सेप्ट ऑन डिविजिबिलिटी। सो
I believe you appreciated whatever we learned in this session. And if you like the session, then make sure to hit the like button as well. And you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and that's all in this session. Bye bye, take care, and keep learning.